हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइटस। टेरिडोफाइटस इंक्लूड हॉर्स टेलस एंड फर्नस। अगर हम टेरिडोफाइटस की हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट मीन्स वायर दे ग्रो इन कूल, damp and shady places. Even some pteridophytes flourish well in sandy soil conditions. यानी कि कुछ टेरिडोफाइटस है जो सैंडी सॉइल कंडीशन पे भी ग्रो करते हैं। सैंडी सॉइल कंडीशंस। They are first terrestrial plants which evolutionarily possess vascular tissues, that is xylem and phloem. So pteridophytes are the first terrestrial plants which possess vascular tissues. What are vascular tissues? That is xylem and phloem. They are also called conducting tissues or vascular bundles. नंबर थर्ड, जैसा हमने देखा था ब्रायोफाइटस में, ब्रायोफाइटस का जो मैन प्लांट बॉडी था that was gametophyte. So the dominant phase of life cycle of bryophytus or gametophytus. But here in pteridophytus की जो मैन प्लांट बॉडी है, मैन प्लांट बॉडी, that is sporophyte. So this is dominant phase of life of pteridophytus. And their sporophyte is well differentiated into true roots, true stem and true leaves. अगर हम ब्रायोफाइटस की बात करें, उनकी जो मैन प्लांट बॉडी थी वो गैमेटोफाइट थी, और उनका स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट, दे वर नॉट पॉजेसिंग ट्रू रूटस, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स. उनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर्स थे, नॉट रूटस. स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, बट इन टेरिडोफाइटस दे पॉजेस ट्रू रूटस, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स. और इन तीनों ऑर्गनों में वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं. वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज मीन्स रूट का अलग अपना जाइलम और फ्लोएम है, स्टेम का अलग जाइलम और फ्लोएम है, और लीव्स के पास खुद का जाइलम और फ्लोएम होता है. सो दीज ऑर्गन्स possess well differentiated vascular tissues. अगर हम टेरिडोफाइटस में देखें, कुछ स्पीशीज ऐसी है लाइक सिला जिनीला. इनके लीव्स छोटे होते हैं. दे possess small leaves called microphyllus. And some pteridophytes like ferns, they possess large sized leaves called macrophyllus. अगर हम स्पोरोफाइट को देखें, फिर से मैं एक बार लिखूंगा स्पोरोफाइट. This is man plant body of pteridophyte, sporophyte. It is diploid, which possesses true root, true stem and true leaves. इस स्पोरोफाइट में स्पोरंजिया होते हैं जो which are on leaf-like appendages called sporophylls. In short, we can say this sporophyte possesses sporophylls. What are sporophylls? Sporo means spore, phyll means leaf, spore bearing leaf. So sporophylls possess actually sporangia. And in sporangia there is what? There are spore mother cells. फिर से एक बार मैं बताऊंगा. जो टेरिडोफाइटस का स्पोरोफाइट होता है, यानी कि मैन प्लांट बॉडी, इस पे स्पोरोफिल्स होते हैं. व्हाट आर स्पोरोफिल्स? दे आर स्पोर बियरिंग लीव्स. और इन स्पोर बियरिंग लीव्स में, इन स्पोरोफिल्स में, दिस इज आल्सो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इनमें होता है स्पोरंजिया. स्पोरंजियम इज सिंगुलर एंड स्पोरंजिया इज प्लूरल. इन स्पोरंजिया देयर आर स्पोर मदर सेल्स. They are also diploid.
And on meiosis, these spore mother cells produce haploid spores, which is released out from sporangia. इससे पहले स्पोर को क्या होता है, फिर कैसे जर्मिनेट होता है, इससे पहले कुछ ऐसे टेरिडोफाइटस है जिनके ये स्पोरोफिलस कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं. दे आर इन एग्रीगेटेड फॉर्म, कंपैक्ट फॉर्म, कॉल्ड स्ट्रॉबेली और कून. इसको स्ट्रॉबेली या कून बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इक्विस्टेम. अगर हम इक्विस्टेम में देखें ऐसे, if this is stem of ecostem, it possesses sporophylls. These are sporophylls. They are in aggregation. They are compactly arranged. These are all sporophylls. They are in compact arrangement, tight arrangement, and this structure is called strobilus. Strobili is plural. It is also called cone. So these sporophylls possess sporangia. And in sporangia there are spore mother cells. In spore mother cells की meiosis होती है और ये प्रोड्यूस करते हैं spores. And these spores come out from sporangia and get germinated. इनकी germination होती है. Germination. जब ये spores germinate होते हैं, इनमें एक gametophytic structure बनता है, that is called prothallus. This is what? This is गैमेटोफाइट. यानी कि स्पोरोफाइट में स्पोरोफिलस होते हैं, स्पोरोफिलस में स्पोरंजिया होता है, स्पोरंजिया में स्पोर मदर सेल्स होते हैं, स्पोर मदर सेल्स की मियासिस होती है, इनके स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर्स बाहर चले जाते हैं और जब ये किसी ऐसी जगह पे पड़ते हैं जहां पे कूल, डैम्प, मॉइस्ट, शेडी प्लेस हो, ये स्पोर्स वहीं पे जर्मिनेट करते हैं. अदरवाइज दे विल नॉट गेट जर्मिनेटेड. सो दैट इज वाई कि अगर हम जियोग्राफिकल लोकेशन पे देखें, दे ग्रो इन लिमिटेड, इन नैरो जियोग्राफिकल लोकेशंस, दिस टेरिडोफाइटस. क्योंकि स्पोर को हर जगह पे मॉइस्चर, शेड, कूल, डैम्प प्लेस नहीं मिलेगा. जहां पे इनको मॉइस्चर मिलेगा, शेडी प्लेस मिलेगा, कूल प्लेस मिलेगा, ये स्पोर्स वहीं पे जर्मिनेट करेंगे. तभी ये टेरिडोफाइटस जमीन के हर हिस्से पे ग्रो नहीं करते हैं. दे आर लिमिटेड टू सर्टेन जियोग्राफिकल लोकेशंस, जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए, जहां पे वाटर हो, ताकि ये गैमेटोफाइट जो है जिसपे मेल सेक्स ऑर्गन इंथ्रेडियम होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होगा, फिर मेल सेक्स ऑर्गन से यानी कि इंथ्रेडियम से एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे, वो थ्रू वाटर स्विम करते करते आर्चिगोनियम में चले जाएंगे. सो these gametophytes will not germinate in every place. They get germinated only in the place where there is presence of water. क्योंकि इनको वाटर की जरूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तभी ये टेरिडोफाइटस हर जगह पे नहीं पाए जाते हैं. जहां पे इनको रिक्वायरमेंट मिले, जहां पे इनको पानी मिले, जहां पे इनको शेड मिले, डैम्प प्लेस मिले, ये वहीं पे ग्रो करते हैं. देन अगर आपको कोई बताए व्हाट इज प्रोथैलस, प्रोथैलस इज स्मॉल, छोटा, इनकॉन्स्पिक्यूअस, जो हमें दूर से दिखाई ना दे, मल्टीसेल्यूलर, मेड अप ऑफ मेनी मोर सेल्स, ग्रीन, photosynthetic and free living structure. What? फिर से मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा. This prothallus is small, inconspicuous, multicellular, green, mostly photosynthetic, free living, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है. यानी कि जो ये प्रोथैलस होता है ये छोटा होता है, बिल्कुल जमीन के बिल्कुल साथ. अगर यहाँ पे सॉइल है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल छोटा, जमीन के साथ, फ्यू मिलीमीटर्स अबव फ्रॉम सॉइल. इट इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, व्हिच वी कैन नॉट सी फ्रॉम फार. दूर से हम इसको नहीं देख सकते हैं. इट इज मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर, इट इज ग्रीन, इट इज फोटोसिंथेटिक. एंड इफ दिस इज फोटोसिंथेटिक, अगर ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ये अपना फूड खुद बनाएगा, सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, सो इट इज फ्री लिविंग. इसकी एग्जिस्टेंस फ्री लिविंग होगी, ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये खुद का फूड बनाएगा थ्रू फोटोसिंथेसिस. अब अगर हम देखें,
अगर हम ब्रायोफाइटस की बात करें, ब्रायोफाइटस का जो स्पोरोफाइट था दैट वाज डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेटिक लीफी गेमिटोफाइट. But here, this is also free living because this possesses true roots for absorption of water and minerals. This possesses true levers for photosynthesis. So this is also free living. और जब इनसे स्पोर निकलते हैं, प्रोथैलस बनता है यानी कि गेमिटोफाइट बनता है, वो भी फ्री लिविंग होगा because that is green. That will perform photosynthesis for their food. So that is free living structure. It is also not dependent on sporophyte. अब अगर हम गेमिटोफाइट की बात करें, दिस प्रोथैलस की यानी कि गेमिटोफाइट की बात करें, इस गेमिटोफाइट पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे. क्या क्या? अगर हम देखें, मेल सेक्स ऑर्गन इस गेमिटोफाइट पे, दैट इज कॉल्ड एंथ्रीडियम. और इस पे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यानी कि ऑर्चिगोनियम, which is plastic shaped, ऑर्चिगोनियम. This entheridium produce male gametes, that is entherozoides, which is biflagellated haploid structure, and this orchigonium is plastic shaped, which possesses female gamete, that is egg, is also haploid. यहां पे थिन फिल्म ऑफ वाटर होगी इस गैमेटोफाइट पे, थिन फिल्म ऑफ वाटर, और इसके एंथ्रीडियम से एंथ्रोजाइडस निकलेंगे और ये पहुंचेंगे उस वाले गैमेटोफाइट पे जहां पे ऑर्चिगोनियम होगा. ये एंथ्रोजाइड ऑर्चिगोनियम के अंदर चला जाएगा और एग के साथ फ्यूज करेगा. एंड ऑन फ्यूजन व्हाट विल हैपन? zygote will get formed. After fertilization, zygote will get formed. This is diploid structure. And this zygote undergoes fusion, undergoes mitosis to form embryo. This is also diploid structure. अगर हम इस एम्ब्रियो की बात करें, इट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट इन टेरिडोफाइटस. यानी कि एम्ब्रियो से ही फिर फ्यूचर में, अगर हम जिम्नोस्पर्म्स में देखें, जिम्नोस्पर्म्स में यानी कि टेरिडोफाइटस में एम्ब्रियो आती है और जिम्नोस्पर्म्स में इसी एम्ब्रियो की वजह से सीड बनता है. सो दिस इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, यानी कि सीड का पहला स्टेप यहां पे ही शुरू हुआ, दैट इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन. सो एज पर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू, it is considered as important step in evolution. So this embryo is considered as an important step in evolution. Later on इसी का evolution होगा जिम्नोस्पर्म्स में और इसी एम्ब्रियो के बाद सीड बनेगा. So सीड का पहला स्टेप टेरिडोफाइटस में बन गया, that is embryo. And this embryo undergoes diffusion, continuous diffusion to form what? To form well differentiated sporophyte again, which possesses true roots, true stem and true leaves. फिर से यही कहानी शुरू. स्पोरोफाइट पे स्पोरोफिलस होंगे, किसी किसी स्पेशीज में इनका एग्रीगेशन होगा स्पोरोफिलस का, which we called कून और स्ट्रॉबेरी. और स्पोरोफिलस में स्पोरंजा होंगे, स्पोरंजा में स्पोर मदर सेल्स होंगे जिनकी मियासिस होगी, एंड ऑन मियासिस दे प्रोड्यूस स्पोर्स एंड दीज स्पोर्स गेट डिस्पर्स्ड, जहां पे इनको डैम्प कंडीशन, मॉइस्ट कंडीशन, शेडी कंडीशन, वाटर मिलेगा, वहां पे ये जर्मिनेट होगा और प्रोथैलस बनेगा यानी कि गैमेटोफाइट बनेगा. फिर गैमेटोफाइट पे मेल सेक्स ऑर्गन होगा एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा ऑर्चिगोनियम, और फिर एंथ्रीडियम से एंथ्रोजाइडस निकलेंगे यानी कि मेल गैमेटस, ऑर्चिगोनियम से एग निकलेगा, इनका फ्यूजन होगा. फ्यूजन कहां होगा इनका? ये जाइगोट ऑर्चिगोनियम में बनेगा, दिस ऑर्चिगोनियम, और इस जाइगोट का ड्यूजन भी ऑर्चिगोनियम में ही होगा. और ये जो एम्ब्रियो यहां पे बनेगी यह भी ऑर्चिगोनियम में ही बनेगी, एम्ब्रियो ऑर्चिगोनियम में ही बनेगी. और अल्टीमेटली जो स्पोरोफाइट निकलेगा वो भी ऑर्चिगोनियम से ही निकलेगा. सो ये साथ साथ रहेंगे, स्पोरोफाइट और ये फीमेल गैमेटोफाइट. अब कब तक ये साथ रहेंगे? डिफरेंट स्पेशीज में डिफरेंट टाइमिंग तक ये साथ रहेंगे. देयर इज अ वेरिएबल टाइम ड्यूरेशन कि ये कब तक साथ साथ रहेंगे. और फिर ये ग्रोथ होता चला जाएगा, खुद के इसके रूट्स बनेंगे, वेल डिफरेंशिएटेड रूट्स, इसका स्टेम बनेगा, इनकी लीव्स बनेंगे और ये इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेंड करेगा. और अगर हम देखें टेरिडोफाइटस में और एक बात, मेजॉरिटी जो टेरिडोफाइटस की है, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइटस, their spores are same, so they produce homospores which are all same. But कुछ स्पेशीज ऐसी है, few species like Scylla genilla and
सैल्वीनिया, इनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं हेटेरियोस्पोरस। हेटेरियोस्पोरस, हेटेरियो मींस डिफरेंट स्पोर्स, होमो मींस सेम, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइटस प्रोड्यूस सेम टाइप्स ऑफ स्पोर्स व्हिच आर कॉल्ड होमोस्पोरस। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर हम ब्रायोफाइटस को देखें, ब्रायोफाइटस में होमोस्पोरस कंडीशंस होती है, और यहाँ पे टेरिडोफाइटस में मेजॉरिटी में होमोस्पोरस होती है। फ्यू स्पीशीज ऐसी होती है जैसे सिला जनीला एंड सैल्वीनिया, जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं व्हिच वी कॉल हेटेरियोस्पोरस। इनके स्पोर्स जो छोटे होते हैं, स्मॉल स्पोर्स, उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स। और इनके जो बड़े स्पोर्स होते हैं, बड़े साइज के, उनको हम बोलते हैं मेगास्पोर्स और मैक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स। और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, ये छोटे स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स, जब ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो इनका कौन सा गैमेटोफाइट बनेगा? इनका मेल गैमेटोफाइट बनेगा। आफ्टर जर्मिनेशन दीज माइक्रोस्पोर्स will form male gametophyte, which possesses male gametes. Or on germination, these megaspores produce female gametophyte. What is female gametophyte? Which possesses female gametes. एक थंब रूल है बॉटनी में जहां पे भी आपको माइक्रो टर्म मिले, इसका मतलब है मेल। जहां पे भी बॉटनी में आपको मेगा टर्म मिले, इट मीन्स फीमेल। Keep this in your view. So here, majority of Pteridophytus produce same types of spores called homospores, and some species like Selaginella and Salvinia produce different types of spores, some small spores and some lorispores. Small spores are called microspores, और जो large sized के होते हैं उनको बोलते हैं megaspores. And microspores germinate into male gametophyte, megaspores germinate into female gametophyte. और जो ये टेरिडोफाइटस है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस: Silopsida, Lycopsida, Pteropsida और Sphenopsida. They are the 4 classes of Pteridophytus. टेरिडोफाइटस 4 क्लास में डिवाइड हुआ है: सिलॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, टेरोप्सिडा एंड सिफिनॉप्सिडा, जिनके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ोगे। सो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, दैट विल बी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटस. सो टिल देन, गुड बाय.